Students, today we will discuss about energy of orbital layer, right? But first we explain d orbital. So d orbital exists in a energy layer and is equal to 3, 4, 5, right? Means in n is equal to 1, 2 orbit, d orbital is not exist, right? Because for d orbit, value of L is equal to 2, right? But in n is equal to 1, value of L is equal to 0, and n is equal to 2, value of L is equal to 0 and 1, right? So 0 for s orbit and 1 for p orbit, right? And due to this reason, n is equal to 1 and 2 orbit, d orbital is not exist, right? So 1d and 2d not exist. If L is equal to 2, then it is called d orbitals, right? And n is equal to 1 and 2, L is equal to 2 not possible, right? n is equal to 1 में L is equal to only 0 है, right? और n is equal to 2 में L की दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 and 2, 0 and 1, right? So L is equal to 2 is not possible, right? For n is equal to 1 and 2, right? And therefore d orbital does not exist, right? For d orbital, minimum value of n is equal to 3, right? For n is equal to 3, value of L is equal to 0, 1 and 2, right? And L is equal to 2 means d orbital, right? And so, so 3d, 4d, 5d exists, right? Number of d orbital. The number of orbital is equal to 12 plus 1, right? So for d orbit, value of L is equal to 2, right? So put the value of L in this equation. So 2 into 2 is equal to 4 and 4 plus 1 is equal to 5, right? Means number of d orbital are 5, right? And so d subcell have a 5 orbitals, right? And ML value for d orbital is -2, -1, 0, +1 and +2. And these 5 d orbitals are dxy, dyz, dzx, dx2y2 and dz2, right? Next, shape of d orbital. 4 d orbitals have a same shape, right? With a 4 loops. So dxy, dyz, dzx have a loops in their xy plane, xy, yz and zx plane, right? मतलब कि जो xy है dxy उसके लूप्स कहाँ पे होंगे? xy पे होंगे, see? Then dyz है उसके लूप्स कहाँ पे होंगे? तो के yz पे. और dzx है उसके लूप कहाँ पे होंगे? zx पे, right? Which of the x square y square loops are on a x and y axis, right? x square और y square के जो loops है, तो x square का loops x पे और y का loops y पे है, right? Shape of dz orbital is different from other. Other मतलब कि dxy, dyz, dzx और dx square y square से dz loops का जो shape है वो क्या है? जो orbital है वो क्या है? Different है, right? For others in a which two loops around the axis, right? उसमें से ये one loops है, right? और second जो है वो around axis है, right? बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 5 3D orbitals, right? Then energy of d orbital. There are 5 d orbital, right? And energy of this 5 orbital is same, right? Shape and size also same. मतलब कि dxy is equal to dyz is equal to dzx is equal to dx square y square and is equal to dz square, right? सबकी एनर्जी, सबका शेप, सबकी साइज सेम है, लेकिन कब? वन सबसेल में. अगर 3D की बात करें तो 3D में पांचों की पांचों d ऑर्बिटल के शेप से साइज सब सेम होगा, राइट? अगर हम लोग 3D ऑर्बिटल की कंपेयर करें 3D की कंपेयर करें हम लोग 4D के साथ, राइट? तो उसकी एनर्जी, 3D की एनर्जी और 4D की एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है, राइट? जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा तो साइज एंड एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, राइट? मतलब कि 3D less than 4D less than 5D, right? Then radial node and angular node. Where the loops combine, their electron density is 0, right? And in d orbitals, angular node is L, right? And
रेडियल नोड इज n माइनस l माइनस 1, राइट। नोड की वैल्यू हमें पता है कि नोड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कि n माइनस 1 से, राइट। लेकिन अगर हमें रेडियल नोड कैलकुलेट करना है तो उसकी इक्वेशन है n माइनस l माइनस 1, राइट। अब हम बात करें फॉर 3D ऑर्बिट, राइट, उसमें रेडियल नोड कैलकुलेट करें तो 3 क्या है, n, देन d के लिए l की वैल्यू क्या है 2 और माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो रेडियल नोड 0 है, राइट। देन टोटल नोड्स, राइट, वो कितने हैं, n माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 नोड्स, राइट। मतलब कि कितने नोड प्रेजेंट है थर्ड ऑर्बिटल में, 2 नोड्स, राइट। एंड नोड्स मीन्स व्हाट, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, राइट along about energy of orbitals in hydrogen, right। हाइड्रोजन में जो एनर्जी है उसका हमें क्या लिखना है, सीक्वेंस लिखनी है, राइट। मतलब कि पहले एनर्जी कहाँ पे किसमें फिलअप होगी, राइट। तो इन हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। और तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में एंटर होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही एंटर होगा, राइट। एंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोलिली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 1s लेस देन 2s इज इक्वल टू 2p लेस देन 3s 3d, राइट। अब 1s है, राइट, 1s से 2s मतलब कि 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एनर्जी ज्यादा है, 2 से 3 की ज्यादा, देन 4 की ज्यादा, देन 5 की ज्यादा, राइट। अब सेकंड ऑर्बिट में s और p दोनों प्रेजेंट है, तो 2s एंड 2p दोनों की एनर्जी सेम होगी, किस में, ओनली हाइड्रोजन में, राइट। व्हाई, because in hydrogen there only one electron is present, right, and one electron कौन सी ऑर्बिट में एंटर होगा, 1s ऑर्बिट में ही। बाकी की ये जो सब ऑर्बिट है वो सब ऑर्बिट क्या होगी, एम्प्टी होगी, राइट। एंड ड्यू टू दिस रीजन एनर्जी ऑफ सेम सब लेवल एनर्जी ऑफ सेम सब ऑर्बिट, राइट, आर सेम, मतलब कि 2s इज इक्वल टू 2p, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d, देन 4s 4p 4d 4f, राइट, आर इक्वल, राइट। बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। और यहाँ पे आपको 2 स्टेट के बारे में बोला है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट किसे बोलते हैं, तो कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, राइट। ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में जब मूव होता है तो वो हमारा क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो कि फॉर हाइड्रोजन द 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम as said earlier corresponding to the most stable condition, right, and is called the ground state। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी 1s ऑर्बिटल में, तो वो जो 1s ऑर्बिटल उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, राइट, बिकॉज वहाँ पे वो स्टेबल कंडीशन में होता है, राइट। एंड an electron residing in an orbital is mostly strongly held by the nucleus, right। मतलब कि 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्डेड है, राइट। मतलब कि वो स्ट्रांगली अटैच होगा न्यूक्लियस से, राइट। यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है 1s 2s, राइट। तो ये जो 1s है फॉर हाइड्रोजन 1s इज अ ग्राउंड स्टेट, राइट। तो ये 2s 2p 3s 3p कोई भी 4s 4p ये सब हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो कि एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s 2p और हायर ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड स्टेट, राइट। मतलब कि 2s है 2p है 3s 3p 4s कोई भी 1s के अलावा, बिकॉज इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ओनली प्रेजेंट इन अ 1s ऑर्बिटल, राइट। तो उसके अलावा जो भी ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, राइट, वो सब उसके लिए कौन सी ऑर्बिट हो गई, वो सब कौन सा स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वीकली अट्रैक्ट ग्राउंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। मतलब कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेस देन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, राइट। द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम is the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus or subcell
right, and is not affected to orbital energy state. Okay. Next, give the order of energy of orbital in a multi-electron atom. Multi-electron means यहाँ पे किसकी बात की है? More than one electron, right? More than one electron है तो उसमें जो एनर्जी कैसे फिलअप होगी उसके बारे में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है, राइट? तो द एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम इज द ग्राउंड स्टेट इज शोन इन अ फॉलोइंग डायग्राम, राइट? यहाँ पे हमें ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो दी हुई है कि 1s की एनर्जी सबसे लेस है, देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 4d। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैडम 3p के बाद तो 3d आता है, तो फिर यहाँ पे 4s बीच में क्यों आया? बिकॉज उसके लिए भी एक रूल्स है जिसके बारे में हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एक क्वेश्चन, हम लोगों को वो पूरा एनर्जी का एक सीक्वेंस दी हुई है, राइट? कि 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, राइट? वैसे अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में हमें पता है कि 2s = 2p है, 3s, 3p, 3d सबकी एनर्जी क्या है? सेम है, राइट? क्यों ऐसा है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? Factor of affecting the energy of orbital. The attraction of orbital towards the nucleus किस पे डिपेंड है, राइट? क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है, राइट, वो न्यूक्लियस पे क्या करती है? अट्रैक्शन करती है, राइट? और सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन। तो रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, राइट? The shielding amount of outer cell to electron of the inner cell orbital, right? मतलब कि जो आउटर सेल है ना वो उस पे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं? हम लोग अभी नीचे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? द इफेक्ट ऑफ आउटर सेल ऑर्बिटल इज एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एस, राइट? सेम सब सेल की बात की है, सेल की। द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो उसके बारे में भी हमें डेफिनेशन दी हुई है, राइट? ऑन आउटर सेल ऑर्बिटल, वो डिपेंड करता है। देन द डिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस टू आउटर सेल, मतलब कि न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट से डिस्टेंस कितना है, राइट? उस पर भी वो क्या करता है? डिपेंड करता है, ओके? नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द एक्चुअल चार्ज felt by the valence cell electron is called, right? जो उसका जो एक्चुअल चार्ज है वैलेंस सेल का, वैलेंस सेल मीन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल मीन्स वो, तो कि इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो भी ऑर्बिटल में फील होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, राइट? सेल इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वैलेंस सेल का जो चार्ज है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? द इफेक्ट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, राइट? एंड दैट इफेक्ट इज डिक्रीज बाय इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगी तो दैट इफेक्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी, ओके? एंड लास्ट है शील्डिंग, because the electron in a inner cell between nucleus and outer cell electron decrease the effect of positive charge of nucleus on a outer electron। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। थर्ड सेल अगर हमारा आउटर सेल है तो ये जो फर्स्ट सेकंड ये जो सब सेल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर सेल, राइट? अगर इनर सेल कंप्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ड्यू टू दिस रीजन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो इफेक्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग बोलते हैं, राइट? सो आउटर इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सपीरियंस completely attraction of nucleus, right? And this effect is called a shielding. Shielding means decrease in a positive charge of nucleus on an outer electron। मतलब कि outer electron का nucleus से जो attraction है वो क्या होगा? लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा by a inner cell electron। मतलब कि इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से, तो वो इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट, राइट? कि जो इनर सेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल विथ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से आउटर सेल है उसका जो
न्यूक्लियस के साथ जो इफेक्ट होना चाहिए, जो एक्सट्रैक्शन होना चाहिए, वो लेक हो जाता है। तो वो जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सील्डिंग बोलते हैं। ओके, थैंक यू।